Hello everyone. We are here for the chemistry 1 chemistry class. So in that what we are going to study this or we are going to discuss today that I will tell you. एक्चुअली जैसे कि अभी चल रहा है लॉकडाउन पीरियड तो 10th तो कंप्लीट हो गया। जैसे कि एक पेपर स्टेट बोर्ड वालों का तो एक पेपर भी उनको बोला है कि वो कंबाइन करके कुछ तो मार्क्स का करेंगे। तो वैसे ही अभी वो 10th के बाद तो 11th उनको एडमिशन प्रोसेस देखना पड़ेगा। तब तक हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स लेते हैं उन लोगों के लिए, ताकि उनको भी पता चले कि 11th केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री में कौन से कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिसमें कि अभी हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय दैट केमिस्ट्री। जैसे कि अभी तक बच्चे पढ़ रहे थे कि साइंस मीन्स व्हाट। सो इन दैट साइंस केमिस्ट्री इज वन दिस सब्जेक्ट। सो फर्स्टली विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय दैट chemistry. So chemistry in that nothing but we can study the different atom, molecules as well as molecules, compounds, elements whose properties, their structure, their applications as well as rate of reaction. So together all these points are nothing but the chemistry. So firstly we'll discuss definition of the chemistry. So chemistry is the branch of science which deals with the study of atom, molecule, compounds, their structure, their properties as well as the rate of reaction. ओके, जैसे कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे उसके ब्रांचेस होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैसे ही हमारे में जो केमिस्ट्री है ना उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि देखो हमारे इसमें क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल, ऑल दैट. Okay, so in that only we are going to discuss the three branches of the chemistry. That is, in that first one is that organic chemistry, second one is that inorganic chemistry, and last one is that analytical chemistry. So in that we will discuss what is mean by that organic chemistry, inorganic chemistry and analytical chemistry. So simply अगर consider किया जाए organic chemistry, in that there is a study of the living things, or we can say that there is a study of carbon containing compounds. Now see second one that is an inorganic chemistry. In that there is a study of non-living things. Okay, in that now see here I am writing carbon also, because living things as well as the carbon containing compound we can say anything. In that inorganic chemistry there is a study of non-living things as well as we can say that elements which are other than carbon. Means in that inorganic chemistry there is a study of the elements which are present in that periodic table other than the carbon. Okay, and last one is analytical chemistry. Analytical chemistry is nothing but in that there is a study of identification, separation as well as purification. All these are included in that analytical. जैसे कि separation करना हो या फिर purification करना हो तो different instruments use करने पड़ेंगे, different methods use करना पड़ेगा, तो वो सब किस में आता है, तो analytical chemistry. इसमें हमें क्या पता चलता है, पता है, अगर कोई भी substance हो तो उसकी quality कैसी है, उसमें उसकी quantity कितनी है। मतलब इसमें analytical chemistry में we can say that qualitative and quantitative analysis is there. Hope so everyone understood that what is mean by that chemistry, what are the different branches of the chemistry, and these three branches. Okay, now we will discuss that basic term, that is the atom. So what is included in that atom, who has discovered that atom, all these points we will discuss here only. Now see here in that chemistry first point we are going to discuss, that is the atom. So जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा होगा, एटम बोले तो एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको हम बाद में डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम सिंपली वर्ड्स में डालेंगे। वो देखो कैसे, एटम। अगर हम एटम बोलेंगे तो एटम के लिए क्या दो वर्ड्स आएंगे, देखो पहले स्मॉलेस्ट, सेकेंड वर्ड आता है इनडिविजिबल पार्टिकल। सो एटम की डेफिनेशन बहुत सिंपल है ना, क्या है, एटम इज ए स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल. ओके, जैसे कि अभी ये एटम के बारे में किसने डिस्कवरी की, ठीक है, तो उस साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन. साइंटिस्ट डाल्टन हैज़ वर्कड ऑन दैट
atom part. Okay, next part I want to tell you that if we consider that atom, what is included in that atom, that we will discuss right now. Now see here, in that atom, if we draw one diagram for the atom, okay, now see here, this is the atom. Okay, what is this? This is the atom. Second one, central part of an atom is called as a nucleus. This is the nucleus. Hope so everyone is getting my points. Okay, now what is in that atom and in that nucleus, that I will tell you. So now see here, in the nucleus, protons and neutrons. P stands for the protons, N stands for the neutrons. Okay, clear to everyone? And last one remain, that is the electron. Electron is present around the nucleus. So electron is present here. So E stands for the electron. Okay, now see here. Once again I am giving description about this diagram. Okay, this circular one circle we have drawn, that is the atom. So if we consider that atom, in that atom central part is called as a nucleus. Now what is present in that nucleus and around the nucleus, that we will discuss. Okay, in that nucleus there is a presence of a protons and neutrons, and around the nucleus electrons are revolving. Now see, electrons are revolving around the nucleus in a circular path. Okay, now see, once again I am telling you, before going towards that I will write here that circular path around the nucleus, circular path around the nucleus is called as a orbit. Clear to everyone? Now see, what is my point? The electrons revolving around the nucleus in a circular path, it is called as a orbit. Okay, now see, now I want to tell you that scientist name who has discovered, जैसे कि एटम के बारे में देखा, डाल्टन ने वर्क किया एटम के बारे में, जैसे वैसे ही प्रोटॉन के बारे में किसने वर्क किया, न्यूट्रॉन के बारे में एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में. ठीक है, अभी अब अगर पहले देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जिसने वर्क किया उस साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन. ओके, नेक्स्ट वन, इफ वी कंसिडर न्यूट्रॉन्स पे किसने वर्क किया तो वो साइंटिस्ट का नाम है चैडविक. ओके, एंड लास्ट वन प्रोटॉन्स पे जो साइंटिस्ट का नाम आएगा वो जिसने वर्क किया उसका नाम है रुदरफोर्ड. Okay, hope so everyone understood that what is meant by that atom, what is included in that atom. Okay, now I want to tell you that which charge or what is the charge present on that proton, neutron and electron. In front of that only we will write here. You can write it in a tabular form also. Okay, now see here, proton is having the positive charge. अगर न्यूट्रॉन देखेंगे तो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल. अब ये न्यूट्रल बोले तो उस पर क्या होगा, जीरो चार्ज होगा. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे आएगा नेगेटिव चार्ज. होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दैट कंसेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू एटम. मुझे लगता है कि अभी आप स्टार्टिंग में हो, मतलब जैसे कि अभी 10th कंप्लीट हुआ टाइम है, तो जब सब नोट्स शॉर्ट में मिल रहे हैं तो वो भी नोट डाउन किया कीजिए. ठीक है, मेरा पॉइंट क्या है, एटम इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. Who has discovered about the atom? That is the Dalton. What is present in that atom? That is the proton, electron and neutron. Proton is positively charged, neutron is chargeless and electron is negatively charged. Okay, everyone understood? Now see what charge, जैसे कि हमने देखा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, अब देखेंगे एटम पे और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे कि अप टू नाउ लास्ट पॉइंट आई वांट टू रिवाइज यू दैट सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ए ऑर्बिट. ठीक है, अभी जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट मुझे आपको कौन सा बताना है, तो अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एटम पे और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आएगा. अभी देखते हैं कैसे होता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स देखते हैं तो इनका नंबर कैसे होता है, तो सेम होता है. मैंने क्या बोला, देखिए वंस अगेन,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पर ये किस बात के लिए सेम होता है वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। अगर कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस हो, मतलब जैसे कि अगर हम कंसीडर करें, एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको पता होगा, वेल नोन वो एग्जांपल है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर मतलब जैसे कि 6 है। इसमें क्या होता है कार्बन में, देखो ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन में क्या होता है, नंबर जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है 6। मतलब कौन से भी न्यूट्रल एटम के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वैसे ही अगर कौन सा भी न्यूट्रल एटम कंसिडर करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर वैसे ही कौन से भी एक एलिमेंट का हम अगर एटम कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिसमें है प्रोटॉन्स एंड हियर इलेक्ट्रॉन, अभी हमें डिस्कस करना है एटम पे, एटम पर कौन सा चार्ज होता है। अगर एटम की बात करते हैं तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कैसा है, चार्जलेस। सो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये मैंने आपको बोल दिया। मतलब जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। कौन से भी एटम के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है, मतलब निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। सो इन दिस वे एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ सी दैट्स ऑल अबाउट द एटम। अभी हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में क्या आता है, न्यूक्लियस में आता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे कि प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन होता है 0 चार्ज, ठीक है। मतलब इमीडिएटली वी आर गेटिंग दैट न्यूक्लियस में खाली रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसमें क्या हुआ, प्रोटॉन पे आता है पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली charged. Everyone understood? Now see here. Here we have completed today's first point. In that basic terms we have taken. So in this video we have completed what is meant by that atom, chemistry, what is included in that chemistry also. Okay. Now I think so it's बहुत सारा हो गया बोल सकती हूँ, क्योंकि कैसे अगर मैं ज़्यादा डालूंगी तो आपको लगे मैम बहुत हो गया, बोरिंग हो गया, इसलिए इतना ही हम रखते हैं आज का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने ये कार्बन ड्रॉ किया था, 6, 12 लिखा था, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वो वीडियो देखने के लिए आपको इस वीडियो में क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन के लिए जैसे कि इसके आगे का वीडियो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको बेल आइकॉन पे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।